ایک بادشاہ تھا، اس میں ایک بری عادت تھی، اسے بیٹیوں سے بہت نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت سے اس کے یہاں پہلے بیٹا پیدا ہوا۔ اسے اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا اور بہت لاڑ پیار سے اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ کچھ سال کے بعد ملکہ پھر پریگننٹ ہو گئی۔ پیدائش کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا پڑا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا، لڑکا ہوا تو ٹھیک، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے دفن کر دینا۔ اور یہ کہہ کر بادشاہ چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ رونے لگی، یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ پیدائش کے وقت ایک دائی موجود تھی جو ملکہ کی حالت دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا کیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، ملکہ، آپ دل چھوٹا مت کیجیے، میں یہاں سے سب کے سامنے بچی کو دفن کرنے کے بہانے لے جاؤں گی، پر میں یہاں سے اسے اپنے گھر لے جا کر پالوں گی۔ اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچ وغیرہ بھیجتی رہیں گی تو آپ کی بچی خوشحال زندگی گزارے گی، ورنہ ہم غریب کو جو بھی نصیب میں ہو ایسے بھی پالنے کی کوشش کروں گی۔ ملکہ نے کچھ سونا چاندی زیور وغیرہ اپنی بچی کے لیے اسے تھما دیے۔ محل میں یہ بات پھیلائی گئی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر دفنا دیا ہے، جبکہ دائی نے شہزادی کو اپنے گھر لا کر پورے لاڑ پیار سے اس کی پرورش شروع کر دی۔ جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہ خبر سنائی گئی کہ آپ کے جانے کے بعد بچی پیدا ہوئی تھی اور آپ کے حکم سے اسے دفن کر دیا گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ دائی سے جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچی کس کی ہے تو وہ کہہ دیتی کہ یہ میری نواسی ہے۔ دائی کبھی کبھار بادشاہ سے چھپا کر بچی کو لاتی اور ملکہ سے ملواتی۔ ملکہ کو اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی ممتا کو کچھ راحت ملتی اور وہ اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے دائی کو سونا چاندی دے دیا کرتی۔ اسی لیے شہزادی کی پرورش اچھے طریقے سے ہو رہی تھی اور وہ بہت ہی خوبصورت لگتی تھی۔ اس لیے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی۔ اسی وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہی تھی۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی، پوچھا، یہ کون ہے؟ منتری نے کہا، یہ اس بیچاری دائی عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، مجھے یہ بہت پسند آئی ہے، کل اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جانا۔ کیونکہ حقیقت کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے دوسرے دن منتری، وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے گئے۔ اب دائی کے ہوش اڑ گئے کہ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ دائی نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میں ایک غریب ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں، اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب سے رشتہ جوڑنا صحیح ہے، اسی لیے دوبارہ یہ رشتہ لے کر میرے گھر مت آئیے گا۔ بادشاہ خود تو نہیں آیا، لیکن دائی کے گھر رشتے کے لیے بہت سے لوگوں کو بھیجا۔ سب نے دائی کو بہت منایا اور دھمکی دی، لیکن دائی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کر اسے خوب سزا دی جائے تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لائے اور انہوں نے اسے کوٹ کوٹ کر پیٹنا شروع کیا۔ سپاہیوں نے دائی کو کپڑے کی طرح نچوڑ کر رکھ دیا۔ بیچاری پہلے سے ہی 2 ہڈیوں پر تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں نے اسے دفن کرنے کے بجائے اپنے گھر لے جا کر اس کی پرورش کی ہے۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہا تھا۔ خدا نے اسے گناہ سے بچایا۔ بادشاہ اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے شہزادے کو بلا کر حکم دیا کہ اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دو اور اس کی آنکھیں نکال کر اور گردن کا خون لا کر مجھے دکھا دو تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ شہزادہ پریشان ہوا
कि वह कैसे अपने हाथों से अपनी बहन को कत्ल करे, इसकी आंखें निकाल ले और इसकी गर्दन का खून लाकर बाप को दिखा दे। यह उसे किसी भी सूरत में गवारा न था। उसे अपनी बहन के बारे में अब मालूम हुआ, लेकिन उसे पता था कि बादशाह हर सूरत में अपनी बेटी को दफन करना चाहता है। अगर उसने उसे कत्ल नहीं किया तो बादशाह दोनों को दफन कर देगा। मजबूर होकर अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की तरफ चला गया। जब दोनों जंगल में पहुंच गए तो बहन के लिए भाई के दिल में मोहब्बत जाग गई। शहजादे ने अपनी बहन से कहा कि मैं किसी भी सूरत में तुम्हें अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ। आगे तुम्हारी किस्मत तुम्हें जहाँ ले जाए, तुम भागकर कहीं और निकल जाओ। लेकिन बहन ने भाई का हाथ पकड़कर कहा, नहीं भाई, तुम मुझे कत्ल कर दो। मेरी आंखें और खून ले जाकर बाप को दिखा दो, नहीं तो वह तुम्हें मार देगा, जो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। आखिर किसी तरह भाई ने बहन को मना लिया। शहजादी आंसू बहाते हुए घने जंगल की तरफ जाने लगी। आखिरी बार पलटकर भाई को देखा और जंगल में घुस गई। इसके बाद शहजादे ने इधर उधर से ढूंढकर एक हिरन का शिकार किया, उसकी गर्दन का खून निकाला और आंखें निकाली और ले जाकर बादशाह को दिखा दिया। बादशाह ने आईना मंगवाया, उसमें उन आंखों को और अपनी आंखों को गौर से देखा। जब उसको यकीन हो गया कि आंखों का रंग एक ही है, तब उसे तसल्ली हुई। मलिका ने किसी तरीके से शहजादे को बुलाकर उससे बेटी के बारे में पूछा। शहजादे ने माँ को सारा सच बता दिया। मलिका ने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया और बेटी के लिए दुआ मांगी कि या अल्लाह, तू मेरी बेटी की हिफाजत कर, उसे अपने अमान में रख और किसी अच्छी जगह पर पहुंचा दे। अब आगे शहजादी का किस्सा सुनिए। शहजादी जंगल में रहने लगी और भूख मिटाने के लिए जंगली फल फूल खाकर अपना वक्त गुजारने लगी। इसी तरह बहुत सा वक्त गुजर गया। झाड़ियों और कांटों से उलझकर उसके कपड़े फट गए थे और उसके बदन पर कोई कपड़ा न रहा। एक दिन किसी और मुल्क का बादशाह अपने लश्कर के साथ इसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक बादशाह इसी तरफ जा निकला जिधर शहजादी थी। जब शहजादी के कानों में किसी घोड़े के कदमों की आहट पड़ी तो जल्दी जल्दी एक घने पेड़ पर चढ़ गई और पेड़ के बड़े बड़े पत्ते तोड़कर अपने शरीर को छुपाकर बैठ गई। वह बादशाह भी उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। बहुत घना पेड़ था। एक तरफ अपने घोड़े को बांधा और पेड़ के साए में कपड़ा बिछाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। और बादशाह का मुंह आसमान की तरफ था और वो अपने ख्यालों में गुम था। जब उसकी नज़र पेड़ के घने पत्तों में छुपी लड़की पर पड़ी तो वह उछलकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज़ से कहने लगा, अल्लाह की बंदी, तुम कोई परी हो, फरिश्ता हो या जिन्न हो या कोई इंसान हो, जो भी हो अपने आप को जाहिर करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शहजादी ने पुकार कर कहा, ए मुसाफिर, मैं एक लाचार लड़की हूँ। मेरे बदन पर कपड़ा नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। अगर तुम अपने नीचे बिछी चादर को मेरी तरफ फेंक दो तो मैं उससे अपने बदन को ढककर नीचे उतरूं और तुमसे बातचीत करूं। बादशाह ने अपने नीचे बिछे कपड़े को उठाया, उसका गोला सा बनाया, उसकी तरफ फेंका। शहजादी ने उस कपड़े से अपने जिस्म को खूब अच्छी तरह छुपा लिया और किसी न किसी तरीके से उतर गई। बादशाह ने शहजादी को देखा तो उसके होशो हवास गुम हो गए। उसके पूरे मुल्क में कोई इतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी। वह पूरे दिलो जान से शहजादी पर फिदा हो गया और शहजादी से कहा, मैं एक बादशाह हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ। अंधा क्या चाहे, दो आंखें शहजादी ने हामी भर दी। वो भी एक ऐसा बंदा चाहती थी जो उसे इज्जत दे। बादशाह खुशी खुशी शहजादी को लेकर
अपने मुल्क चला गया। अपने मुल्क पहुंचते ही बादशाह पहले मंत्री के घर पहुंचा और उससे कहा, ऐसा समझो कि ये तुम्हारी बेटी है। मैं इसका रिश्ता मांगने आऊँगा और शादी ब्याह रचाकर अपनी अमानत यहाँ से अपने महल ले जाऊँगा। मंत्री ने अदाब बजाकर कहा, बादशाह सलामत, आप पूरी तरह से तसल्ली रखिए, ये आपकी अमानत है और मेरी बेटी। जब आपका दिल चाहे इसे ब्याह कर ले जाइए। बादशाह शहजादी को मंत्री के घर छोड़ आया। अगले दिन वकील और काजी बादशाह का रिश्ता लेकर मंत्री के घर आ पहुँचे। मंत्री ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। 1-2 दिन बाद मंगनी हो गई। बादशाह शहजादी के इश्क में सब कुछ भूल चुका था। जल्द ही शादी का कार्ड भेजा और शहजादी को ब्याह कर अपने महल ले आया। बादशाह और शहजादी अपनी शादी से बहुत खुश थे। इस दौरान बादशाह ने शहजादी से उसके बारे में कुछ नहीं पूछा था। चंद साल बाद उसके यहाँ बेटी पैदा हुई। बादशाह बहुत खुश था। उसने शहजादी से पूछा, अल्लाह ने हम दोनों को औलाद से नवाजा है। तुम अब एक बेटी की माँ बन गई हो। अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो और किस जगह तुम्हारा घर है। शहजादी ने किसी तरह से बादशाह की बात टाल दी। इसी तरह कुछ साल गुजरते चले गए। बादशाह के यहाँ दूसरी बार बेटा पैदा हुआ। बादशाह ने दोबारा शहजादी से वही सवाल दोहराया। शहजादी ने फिर बादशाह की बात को टाल दिया। आखिरकार इनके यहाँ जब तीसरा बेटा पैदा हुआ तो इस मौके पर बादशाह ने शहजादी की हकीकत मालूम करने के लिए बहुत दबाव डाला। आखिरकार शहजादी मान गई और बादशाह को हकीकत बताई कि वो दूसरे मुल्क के बादशाह की बेटी है। बादशाह को किस तरह बेटियों से नफरत थी, उसने किस तरह मुझे मारने का हुक्म दिया और दाई ने मुझे किस तरह बचाकर अपने घर में मेरी परवरिश की। बादशाह ने किस तरह मुझे देखा, फिर किस तरह अपने भाई के हवाले करके कत्ल करने का हुक्म दिया। मैं किस तरह जंगल में ज़िंदगी गुजारने लगी, वहाँ तुमने मुझे देखा, मुझे अपने साथ लेकर आए और मुझसे शादी की। बादशाह ने जब शहजादी की दुख भरी कहानी सुनी तो उससे कहा, अपने आप को तैयार करो, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर ले जाऊंगा। शहजादी ने बहुत मिन्नतें की कि मुझे मेरे जालिम बाप के सामने मत ले जाओ, वह मुझे कत्ल कर देगा। लेकिन बादशाह नहीं माना। आखिरकार वो मजबूर होकर अपने माँ बाप के घर यानी अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। बादशाह ने एक बड़े लश्कर के साथ शहजादी और तीनों बेटों को भेजा, लेकिन खुद कुछ ज़रूरी कामों की वजह से रुक गया। अपने मंत्री, वकील और काजी को शहजादी के साथ कर दिया और कहा कि तुम लोग मलिका को लेकर चले जाओ, मैं पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल पर तुम लोगों से ज़रूर आकर मिलूँगा। मंत्री, वकील और काजी शहजादी को लेकर और लश्कर के साथ उसके माँ बाप के मुल्क की तरफ चल दिए। शाम होते होते उन्होंने पहली मंजिल पर पहुंचकर पड़ाव डाला। नौकरों ने शहजादी का खेमा खड़ा किया। तब शहजादी ने देखा कि मंत्री का खेमा भी उसके खेमे के बिल्कुल करीब खड़ा किया गया है। शहजादी ने मंत्री को बुलाकर उससे पूछा, ऐ मंत्री, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी और एक बादशाह की बीवी हूँ। तुम अपना खेमा यहाँ से दूर लगवा दो। मंत्री ने कहा, हे मलिका, बादशाह ने हमें आपकी हिफाजत की खातिर आपके साथ भेजा है। अगर आपको या आपके बच्चों को कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या जवाब दूंगा। शहजादी ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, पर तुम अपना खेमा यहाँ से दूर कहीं और लगवा दो। लेकिन मंत्री नहीं माना। खेमे लग गए, खाना वगैरह खाया गया। रात हो गई थी। थके हारे सारे लोग सो गए। मंत्री के दिल में खोट था, उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिर आधी रात को उठा और शहजादी के खेमे में दाखिल हो गया। शहजादी पहले से ही जान चुकी थी कि मंत्री की नीयत में खोट है। आहट पाकर शहजादी जाग गई। देखा कि मंत्री है तो उसे ललकार कर बाहर निकलने को कहा, लेकिन मंत्री आगे बढ़ने लगा। शहजादी ने कहा, ऐ मंत्री,
तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की बीवी भी। ना मैंने बुराई की है और ना किसी का बुरा चाहा है। मुझे लोगों के सामने बदनाम मत करो और मेरे खेमे से निकल जाओ। लेकिन बेशर्म मंत्री नहीं निकला। अब शहजादी ने देखा यह मंत्री किसी सूरत नहीं मान रहा, तो उसने अपने बड़े बेटे को मंत्री के सामने किया कि तुम्हें इस बच्चे के सर की कसम, इस तरह मत करो। उसे अल्लाह रसूल के वास्ते दिए, लेकिन कमीने मंत्री के दिमाग में शैतान पूरी तरह से बैठ चुका था। वो आगे बढ़ा और तलवार निकालकर एक ही वार में बच्चे का सर अलग कर दिया। शहजादी समझ गई कि मंत्री बिल्कुल भी नहीं मानेगा। उसने मंत्री से कहा, तुम अब बिल्कुल भी नहीं मानोगे। मैं एक पाक औरत हूँ, इस वक्त भी वजू में हूँ। मुझे इतना मौका दो, मैं अपने वजू को तोड़कर आ जाती हूँ, तब तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। मंत्री ने कहा, जाओ और जल्दी आ जाना। शहजादी खेमे से बाहर निकल गई। भागती हुई वहां से दूर एक बड़ी झाड़ी के पीछे छुप गई। मंत्री कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे ढूंढने निकल गया। इधर उधर तलाश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। सुबह होने वाली थी। थक हार कर दोबारा शहजादी के खेमे में दाखिल हो गया। बच्चे की लाश उठाकर कहीं दूर दफन किया और अपने खेमे में आकर घुस गया। सुबह बहुत देर के बाद शहजादी अपने खेमे में दाखिल हो गई। अपने बेटे को ना पाकर रोने लगी। लश्कर दोबारा रवाना हो गया। चलते चलते शाम तक दूसरी मंजिल तक पहुंचा। आज भी नौकरों ने शहजादी का खेमा खड़ा करना शुरू किया। शहजादी ने देखा कि मंत्री ने आज अपना खेमा बहुत दूर खड़ा करवाया है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि नौकर एक खेमा उसके खेमे के करीब खड़ा कर रहे हैं। शहजादी ने नौकरों से पूछा, यह किसका खेमा है? नौकरों ने जवाब दिया, यह वकील का खेमा है। शहजादी ने वकील को बुलाया और कहा, मैं एक औरत हूँ, तुम अपना खेमा मेरे खेमे के करीब से हटा दो, यह अच्छी बात नहीं है। वकील ने कहा, हे मलिका, बादशाह सलामत ने मुझे आपके साजो सामान की हिफाजत के लिए आपके साथ भेजा है। अगर आपको या आपके बच्चों को कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? शहजादी ने जवाब दिया, इतने सारे लश्कर के बीच में मुझे और मेरे सामान को कोई चुरा कर नहीं ले जा सकेगा। बेहतर यही है कि तुम अपना खेमा कहीं दूर खड़ा करवा लो। लेकिन बदकार वकील टस से मस न हुआ और अपना खेमा इधर ही खड़ा करवा दिया। शहजादी पहले से ही मंत्री के हाथों मार खा चुकी थी, इसलिए उस रात अपने पूरे होशो हवास में थी। वैसे भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आज भी उसने आधी रात को किसी के कदमों की आहट अपने खेमे की तरफ आते सुनी तो उठ गई। अब उसने देखा कि आने वाला वकील है, तो शहजादी ने उसे ललकारा, खबरदार, मेरे खेमे में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ खेमे से। लेकिन वकील अपने गंदे इरादों के साथ उसकी तरफ देख रहा था। शहजादी ने दोबारा उससे कहा, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की बीवी हूँ, एक पाक दामन औरत हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ो और अपने अंजाम की फिक्र करो। लेकिन बदकार वकील कहाँ टलने वाला था। वो धीरे धीरे शहजादी की तरफ बढ़ने लगा। शहजादी समझ गई कि ये वकील भी टलने वाला नहीं। उसने अपने दूसरे बेटे को उसके सामने किया और उसका वास्ता दिया, इस मासूम के सर की कसम, मेरा पीछा छोड़ दो और निकल जाओ यहाँ से। लेकिन वकील ने भी तलवार से वार करके उसके दूसरे बेटे के सर को जुदा कर दिया। बेचारी शहजादी ने कहा, अगर तुम अपने गंदे इरादे से नहीं टलने वाले तो मुझे मौका दो, क्योंकि मैं पाको साफ और वजू से हूँ। मुझे कुछ वक्त दो ताकि मैं खुद को नापाक कर दूँ। इसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे करो। वकील ने उसे जाने दिया। शहजादी खेमे से निकल गई। आज भी शहजादी में जितनी हिम्मत थी निकल भागी और जहाँ तक उसके कदमों ने साथ दिया भागी और आखिरकार थक हार कर एक बड़ी झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वकील ने जब देखा कि शहजादी अभी तक नहीं आई तो उसके पीछे निकल पड़ा।
इधर उधर भाग दौड़कर शहजादी को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। अब उसे डर लगने लगा कि बच्चा भी जान से गया और शहजादी भी भाग निकली। अगर किसी ने बादशाह को खबर दी तो वह मुझे खोलते तेल में डाल देगा। वकील जल्दी जल्दी वापस आया, मरे हुए बच्चे को उठाकर कहीं दूर दफन किया और अपने खेमे में जाकर सो गया। जब सुबह हुई तो शहजादी धीरे धीरे अपने खेमे में दाखिल हो गई। खेमे में आकर देखा कि दूसरे बेटे की लाश भी नहीं है। समझ गई कि बदकार वकील ने उसे ठिकाने लगा दिया है। बेचारी किस पर भरोसा करती, इसलिए चुप रही। फिर लश्कर शहजादी को बादशाह की मुलाकात के लिए चल दिया। आज शहजादी अकेली एक बेटे के साथ मायूस होकर एक ऊंट पर सवार थी। जब तीसरी मंजिल पर पड़ाव डाला गया तो आज उस वकील ने अपना खेमा शहजादी के खेमे से बहुत दूर खड़ा किया। वो शर्मिंदा शर्मिंदा शहजादी के सामने आ ही नहीं रहा था। वो हैरान और परेशान था कि जब बादशाह को पता चलेगा तो उसे क्या जवाब देंगे। आज जैसे ही शहजादी का खेमा खड़ा किया गया तो देखा कि काजी साहब अपना खेमा शहजादी के खेमे के सामने खड़ा करवा रहा है। शहजादी ने काजी साहब को भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन काजी भी टलने वालों में से नहीं। आज की रात भी शहजादी के लिए मुसीबत की रात थी। वो समझ चुकी थी कि काजी भी उन दोनों से किसी तौर पर कम नहीं। आज रात तो शहजादी बिल्कुल भी नहीं सोई, बैठी रही। जब रात आधी से ज़्यादा गुजर गई तो देखा कि कोई खेमे में दाखिल हो रहा है। शहजादी ने उसे भी समझाने की बहुत कोशिश की, खुदा रसूल के वास्ते दिए, यहाँ तक कह दिया कि अगर वकील मंत्री जाहिल थे, तुम तो पढ़े लिखे इंसान हो, लोगों में इंसाफ करते हो, तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन काजी भी पूरी तरह शैतान बन चुका था। उस पर उन बातों का कोई असर नहीं हुआ। शहजादी ने देखा कि ये भी नहीं टलने वाला, तो उस ख्याल से कि शायद उसके दिल में रहम पैदा हो जाए, अपने तीसरे सबसे छोटे बेटे को उसके सामने कर दिया। उसका वास्ता दिया, लेकिन काजी तो उन दोनों से भी 2 हाथ आगे था। काजी बज्जात को भी रहम न आया और मासूम बच्चे का सर काट दिया। शहजादी ने इसे भी यही कहा कि मैं पाक साफ हूँ और वजू से हूँ, मुझे मौका दो ताकि अपना वजू तोड़कर नापाक हो जाऊँ। इसके बाद जो तुम चाहो करो। काजी ने भी उसे जाने दिया। जैसे ही शहजादी बाहर निकली, जिधर मुंह उठा भाग निकली। भागते भागते अचानक उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा था। उसके दिल में धुआं भर गया। अपने मासूम बच्चे की याद आई। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था और वो सोच रही थी कि अगर बादशाह ने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। इससे बेहतर है कि मैं खुद को इस दरिया के हवाले कर दूं। ये फैसला करके उसने दरिया में छलांग लगा दी और दरिया में बहते बहते दूसरी तरफ चली गई। दूसरी तरफ से फ़कीर, जो कि 6 भाई थे, अपने कपड़े धोने के लिए उस दरिया पर आए थे। जब उन्होंने देखा कि दरिया में कोई औरत बहती हुई आ रही है तो पकड़कर बाहर निकाल लाए। अब शहजादी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसके होशो हवास निकल गए कि वहाँ 3 कमीनों से अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली तो इन 6 फ़कीरों के हाथ लग गई। फ़कीरों में से हर एक यही कह रहा था कि ये मेरी है, मगर उन 6 फ़कीरों में सुलह नहीं हो पाई और उन्होंने यही फैसला किया कि इसे अपने बाप के पास ले जाएंगे। वह जिसको कहेंगे ये औरत उसी की है। वो शहजादी को अपने बाप के पास ले गए। उनका बाप एक अक्लमंद इंसान था। देखते ही समझ गया ये किसी बादशाह घराने की औरत है। मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं। इस वजह से उसने अपने बेटों को समझाया, ऐ मेरे बेटो, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसे अपनी बहन बना लो। तुम 6 भाई और 7वीं तुम्हारी ये बहन है। तुम लोग इसकी खूब देखभाल करो, इसकी बरकत से तुम सब खुश रहोगे। बाप के फैसले से फ़कीर बहुत खुश हो गए।
और अपने से बढ़कर 6 भाई मिलकर शहजादी का ख्याल रखने लगे। इनको छोड़ जब बादशाह चौथे दिन लश्कर से मिला तो देखा मंत्री, वकील और काजी उससे कतरा रहे थे। उसके सामने शर्मसार से थे। बादशाह ने पूछा, मेरी पत्नी, बच्चे कहाँ हैं? तीनों ने जवाब एक जवान होकर कहा, मलिका तो एक डायन थी, उन बच्चों को खाकर खुद भाग निकली। बादशाह हैरान व परेशान हो गया कि ये क्या बात हो गई। वो इन तीनों की बात मानने पर मजबूर हो गया, लेकिन कहा कि बाद में देखते हैं, अभी जिस तरफ जा रहे हैं वहां जाकर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। बादशाह अपने दिल में यही सोच रहा था कि जाकर अपने जालिम ससुर बादशाह को देखूं और उससे पूछूं कि उसे क्यों बेटियों से इतनी नफरत है। उसके जुल्म सितम की वजह से उसकी बेटी डायन बन गई और अपने बच्चों तक को खा गई। चलते चलते उन्होंने एक बड़े दरिया को पार किया और अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। इधर शहजादी फकीरों की बहन बनकर रहने लगी। शहजादी को इधर उधर से पता मिल गया और समझ गई कि अपने बाप बादशाह के मुल्क में पहुंच गई है। शहजादी को पता था कि उसके बाप को कहानी सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने फकीर भाइयों से कहा कि तुम जाकर बादशाह को बता दो कि हमारी एक बहन कहानी सुनाती है, क्या आप उससे कहानी सुनेंगे या नहीं। फकीर बादशाह के दरबार तक पहुँचे और बोले, हमारी एक बहन है जो बहुत अच्छी कहानी सुनाती है, अगर आपको पसंद हो तो उसे कहानी सुनाने के लिए लेकर आएं। बादशाह ने उन्हें इजाज़त दे दी और कहा कि अगर उसकी कहानी पसंद आई तो मैं उसे बहुत इनाम दूंगा। शाम को फ़कीर शहजादी को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। शहजादी नकाब में थी और बीच में भी पर्दा लगा दिया था। उसने बादशाह के लिए एक कहानी सुनाई जो बादशाह को बहुत पसंद आई। बादशाह ने खुश होकर फ़कीरों को बहुत इनाम दिया। फ़कीर इनाम लेकर बहन के साथ वापस घर आए। फ़कीर भीख मांगकर गुजारा करते थे, इसलिए वो बहुत खुश हुए। शहजादी अब हर रात आकर बादशाह को एक नई कहानी सुनाती। बादशाह से इनाम पाकर वापस अपने फ़कीर भाइयों के साथ घर लौट जाती। फ़कीरों को भीख मांगने से जान छूट गई। एक रात शहजादी जब बादशाह के दरबार में आई तो देखा कि आज तो उसका शौहर बादशाह, मंत्री, वकील, काजी वगैरह उसके बाप बादशाह के साथ बैठे हुए हैं। शहजादी ने सोचा, आज तो कहानी मज़ा लाएगी। शहजादी आज भी हर रोज़ की तरह नकाब में थी। पर्दे की दूसरी तरफ अपनी जगह पर बैठ गई और अपने बाप बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आज मैं एक बहुत ख़ास कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर किसी को कोई हाजत है तो अभी से उठकर अपनी हाजत पूरी करे। कहानी के दरमियान किसी को उठने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई उठ गया तो मैं कहानी सुनाना बंद कर दूंगी और आगे भी कोई कहानी सुनाने नहीं आऊँगी। बादशाह ने सबको हुक्म दिया। सब ने इकरार किया कि वो कहानी के बीच में नहीं उठेंगे। शहजादी ने कहानी सुनाना शुरू की। एक जालिम बादशाह था। उसे अपने घर में बेटी की पैदाइश पसंद नहीं थी और उसके घर में लड़की पैदा होती तो वो अपनी बीवी को उसे मारने का हुक्म देता। उसकी बीवी ने दाई के जरिए अपनी बेटी को बचाकर उसके घर परवरिश की। एक दिन उस लड़की पर बादशाह की नज़र पड़ी जो अब जवान हो गई थी। बादशाह ने उस बूढ़ी दाई के घर अपने लिए रिश्ता भेजा, लेकिन दाई ने उस रिश्ते से मना कर दिया क्योंकि दाई जानती थी कि बादशाह जिससे शादी करने को कह रहा है वो बादशाह की खुद की बेटी है। बादशाह ने दाई पर जुल्म और सितम ढाए। तब दाई ने बादशाह को बताया कि वो लड़की तुम्हारी खुद की बेटी है। बादशाह हैरान हुआ कि ये तो मेरा किस्सा है जो ये लड़की सुना रही है। बादशाह ने बहुत से हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक कर कहा, देखो किस्से को बंद मत करना। शहजादी ने हीरे जवाहरात अपने फ़कीर भाइयों की तरफ फेंक दिए जो उसे पाकर बहुत खुश हुए। शहजादी ने कहानी जारी रखते हुए कहा,
बादशाह ने बेटी को अपने बेटे के हवाले करके कहा कि इसे जंगल में ले जाकर कत्ल कर दो और इसकी आंखें और खून निकालकर मुझे दिखा दो। लेकिन भाई को अपने हाथों से बहन को कत्ल करना गवारा न हुआ और अपनी बहन को जंगल में छोड़कर वापस आ गया। वो लड़की जंगल में बहुत साल तक रही, यहाँ तक कि उसके जिस्म पर जो कपड़े थे वो भी फट फट कर गिर गए और वो जंगल में वैसे ही दिन गुजारने लगी। बादशाह उम्र में अब बूढ़ा हो गया था। उसे पहले से ही अपनी बेटी के साथ किए गए जुल्म सितम से बहुत पछतावा हुआ था। जब उसे कहानी के जरिए अपनी बेटी के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। शहजादे को भी एहसास हुआ कि ये तो मेरी बहन का किस्सा है। उसने भी कुछ हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि ये कहानी जारी रखना, रुकना मत। फकीर भाइयों को तो इतना माल देखकर बहुत खुशी हुई। शहजादी ने कहा, एक दिन एक बादशाह का गुजारा उसी जंगल से हुआ। उस जंगल बादशाह ने लड़की को देखा और उसे अपने साथ अपने मुल्क ले जाकर उससे शादी कर ली। शहजादी का शोहर बादशाह, जो पहले बड़ी दिलचस्पी से कहानी सुन रहा था, वो चौंक पड़ा कि ये तो मेरी और मेरी बीवी की कहानी लग रही है। उसने भी बहुत से हीरे जवाहरात निकालकर शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि देखो, कहानी आखिर तक सुनाना, मुझे इस कहानी को पूरा सुनना है। फकीर भाइयों के तो पैर खुशी से जमीन पर नहीं थे। शहजादी ने कहानी जारी रखी। बादशाह ने उस लड़की से शादी की। उससे उसे 3 बेटे हुए। एक दिन बादशाह ने उसे इन बेटों के साथ अपने मंत्री, वकील और काजी के साथ उसके मायके भेज दिया। ये कहानी सुनकर मंत्री, वकील और काजी के होश उड़ गए और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि ये तो हमारा किस्सा है। बादशाह ने कुछ और हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए। फकीर भाई खुशी से उछल रहे थे। पहली मंजिल पर बादशाह का मंत्री गंदे इरादे से उसकी तरफ बढ़ा और उससे बचने के लिए शहजादी ने अपने बड़े बेटे को उसके सामने किया कि इस बच्चे के वास्ते हमें छोड़ दो। लेकिन मंत्री को रहम ना आया और उस बच्चे को कत्ल कर दिया। लेकिन लड़की किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली। मंत्री ने यह सुनकर मन बनाया और कहा कि मुझे बहुत जोर का पेशाब लगा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बादशाह ने उसे डांट दिया, खामोशी से बैठ कमीने कहीं के, इस वक्त तुम्हें पेशाब क्यों आ रहा है? मंत्री चुप होकर बैठ गया। दूसरे पड़ाव पर इसी तरह वकील भी अपने गंदे इरादों के साथ लड़की को तंग करने लगा और अपने गंदे ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दूसरे बेटे का सर जुदा करने से बाज नहीं आया। पर पाक दामन लड़की ने यहाँ भी अपनी इज्जत बचाई और भागकर कहीं छुप गई। अब वकील बौखलाया, बादशाह सलामत, मुझे जोर की हाजत पेश आई है, बस मैं यूं गया और यूं आया। बादशाह ने वकील की तरफ आंखें दिखाईं, बस कर कमीने और खामोशी से बैठ। जब हकीकत जाहिर हो रही है तो तुम लोगों को हाजत पेश आ रही है। वकील भी खामोशी से बैठ गया। तीसरे पड़ाव पर काजी भी अल्लाह रसूल को भूलकर लड़की को शादी के लिए तंग करने लगा और उस जालिम ने उसके तीसरे बेटे का सर काट दिया। लड़की ने फिर अपनी इज्जत बचाई और भागकर एक बड़े दरिया में कूद गई। काजी ने भी कोई बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने उसे भी डांटकर चुप करा दिया। दरिया ने लड़की को कहीं दूर ले जाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, जहां उसे 6 फकीरों ने देखा और उस दरिया से निकाला। ये सुनकर फकीर भाइयों का मुंह बंद हो गया। वो सोचने लगे कि यह तो हमारी बहन का किस्सा है। वो भी चुप होकर बैठ गए। वो 6 फकीर इस लड़की को अपने बाप के पास ले गए। उनके अक्लमंद बाप ने इस लड़की को इन 6 भाइयों की बहन बना दिया। उसके बाप बादशाह की आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों बादशाहों ने हीरे जवाहरात के ढेर उस लड़की के सामने लगा दिए और कहा कि खुदा का वास्ता कहानी को जारी रखो। लड़की को किसी तरह पता चला
कि यह उसके बाप बादशाह का मुल्क है। उसे पता था कि उसके बाप को कहानी सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने भाइयों के जरिए बादशाह को कहलवा भेजा कि अगर उसे कहानी सुनना मंजूर हो तो वह आकर बादशाह को कहानी सुनाएगी। यहाँ पहुंचकर उसके बाप बादशाह का दिल चूर चूर हो गया। वो एकदम उठकर खड़ा हो गया। शहजादी ने भी अपने चेहरे से नकाब उठा दिया तो उसके सोहर बादशाह ने भी शहजादी को पहचान लिया। बाप बेटी को और सोहर बीबी को पाकर बहुत खुश हो गए। दोनों ने मंत्री, वकील और काजी को पकड़ा। उन तीनों से पूछा कि बोलो कैसी सजा चाहिए, 4 चढ़ी चाहे 1 या 4 बटेर। यह पहले जमाने में 2 सख्त सजाओं के नाम हैं। उन्होंने कहा कि 4 बटोर। बादशाह ने 12 घोड़े मंगवाए। हर एक के हाथ पैर 4-4 घोड़ों में बांधकर घोड़ों को चारों दिशाओं में दौड़ा दिया, जिससे इनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस तरह उन बेशर्मों को उनके किए की सजा मिल गई और शहजादी का बाप अपनी बेटी और उसका सोहर अपनी बीवी को पाकर बहुत खुश थे और हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।